A morning devotion from Oil and Wine.
लाभदायक पुत्र हैं। There is no use of becoming treasurer and president and elder and welder. It is better to be a son. और नाम पद का कोई मूल्य नहीं कि आप खजांची या दूसरे प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट या और लोग बन जाए, उसका कोई मूल्य नहीं। It is better to be a son and a profitable son in the house of God. परमेश्वर के भवन में लाभदायक पुत्र होना ज्यादा का बेहतर है। It is the servants who fight with one another, who is first, who is second. और ये दास है जो आपस में झगड़ेबाजी करते हैं, प्रथम कौन, प्रथम कौन। They're always there too, with their pots and cans, always trying to please the master. But sons, they're always there to please, to do that which is upon the heart of the Father. और दास हमेशा ही अपनी गतिविधियों के द्वारा अपने स्वामियों को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुत्र पिता की इच्छा के अंदर रहते हैं, लाभदायक। So one thing that the prayer of my heart about myself is, Lord, that my attitudes would change in these days. और एक प्रार्थना मेरे स्वयं के लिए मेरी ये है कि हे परमेश्वर, मेरे स्वभाव, रवैये और चाल चलन को तू बदल। Amen. Let that be your prayer tonight. होने दीजिए आप सबकी भी ये प्रार्थना आपके लिए हो, Mentalities and attitudes would change. ताकि हमारे स्वभाव, रवैये और प्रवृत्ति बदल जाए। But we would be in that place that we are being molded into the image of His Son. ताकि हम उस स्थान में पाए जाए जहां पर परमेश्वर अपने पुत्र के आकार और स्वरूप में हमें ढाल That सके, He may be the firstborn among many brothers. ताकि कई भाइयों में से वो पहलौटा ठहरे। That is the desire of God. ये परमेश्वर की इच्छा है। And I am sure that that is what God will bring forth in the earth in these end times. और ये मुझे भरोसा है कि परमेश्वर यही सब कुछ इस अंतिम समय में इस पृथ्वी के ऊपर कार्य को पूरा करेगा। This is appointment with His sons. और परमेश्वर के पास अपने Hallelujah. पुत्रों से भेंट करने के नियुक्त अवसर है। All creation is waiting for that day, सारी सृष्टि इंतजार कर रही है उस दिन का, for the manifestation and adoption of the sons. ताकि उसके पुत्र प्रकट हो जाए और उनका लेपालकपन हो जाए। You know, the day is coming, और वो दिन आ रहा है, and God must have these sons prepared and brought to that realm and place. और परमेश्वर के पास अपने ये पुत्र उस समय के लिए बिल्कुल तैयार होने चाहिए। When we turn to the book of Philemon again, और जब हम दोबारा से फिलेमोन की पुस्तक की तरफ जाते हैं, yes, the book of Philemon, और फिलेमोन की पुस्तक verse 13 and 14. 13 और 14 वचन, Yes. Whom I would have retained with me, that in thy stead he might have ministered unto me in the bonds of the gospel. उसे मैं अपने पास ही रखना चाहता था कि वह तेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण है मेरी सेवा करे। I could have retained him with me, और मैं उसे अपने पास रख सकता था, and he could have served me in your place और तुम्हारे स्थान में वो मेरी सेवा कर सकता था, while I'm here in bonds for the gospel. और जबकि मैं यहाँ पर सुसमाचार की वजह से कैद में हूँ। In verse 14, 14वां वचन, without thy mind would I do nothing, that thy benefit should not be as it were of necessity, but willingly. पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना ना चाहा कि तेरी कृपा दबाव से नहीं पर आनंद से हो। Yes. He desired Onesimus to return back to Philemon, और उसने इच्छा करी कि ओनेसिमस दोबारा फिलेमोन के घर में लौट जाए। that was the desire of the Apostle Paul. और वो प्रेरित पौलुस की इच्छा थी। Yes.
So we see there is a desire of Jesus here और यहाँ पर मसीह यीशु की इच्छा को हम देखते हैं that we may come into the place of meeting with the Father. कि हम पिता के साथ मिलने के स्थान में आ जाएं। You know, this is the desire of God. और ये परमेश्वर की इच्छा है। As Paul desired that Onesimus must meet with Philemon first. उसी प्रकार से जैसे संत पौलुस की इच्छा थी कि उनेसिमस फिलेमोन से मिले। Dear saints of God, प्रिय परमेश्वर के लोगों, coming into and knowing, coming into a relationship which, you know, is so much in the agenda of God for his sons in this hour. परमेश्वर को जानना, उसके साथ एक घनिष्ठ संबंध में आना, ये परमेश्वर की इच्छा है हम सबके लिए। And reunion with the Father which we have never experienced in the past. पिता के साथ पुनः जुड़ जाना, ये जैसे अतीत में हमने नहीं करा था, ये उसकी इच्छा है हमारे लिए। Remember one thing, saints of God. याद रखें एक चीज अपने जीवन में, God will bring his sons into that most holy place. और परमेश्वर अपने पुत्रों को ही परम पवित्र स्थान में लेके The आएगा। Lord is bringing his sons as the return, you know, unto him in this hour, bringing them to that place of the most holy place behind the veil. और प्रभु इस समय अपने पुत्रों को वापस लौटा के लेके आ रहा है पिता के घर में, परम पवित्र स्थान के अंदर। And there they're going to meet with the Father. There is going to be a union with the Father, which is going to be so different from the past. और वहां पर परम पवित्र स्थान के अंदर पिता के साथ उनका पुनः मिलन, दोबारा से उस रिश्ते में, घनिष्ठ संबंध में वो जुड़ जाएंगे जो उन्होंने पहले अनुभव नहीं करा। For when Onesimus was in Philemon's house before, और जब पहले उनेसिमस फिलेमोन के घर में था, before he fled, इससे पहले जब वो भागा था, he was there as a servant. और वहां पर फिलेमोन के घर में उनेसिमस एक दास के रूप में था। Was his relationship with Philemon. और उस समय ये उसका रिश्ता फिलेमोन के साथ था। But now when he returns, लेकिन अब जब वो दोबारा फिलेमोन के घर में लौटता है, it's going to be different, saints of God. लेकिन अब उसका संबंध बिल्कुल अलग होगा। He returns, he's not going to be a servant anymore. और अब वो जब फिलेमोन के घर में दोबारा लौट रहा है, अब वो पहले की भांति दास नहीं होगा। You know, it says in verse 16, और 16वें वचन में कहता है, not now as a servant, हालेलुया, but above a servant, a brother, beloved, especially to me, but how much more unto thee, both in the flesh and in the Lord. Hallelujah. परंतु अब से दास की तरह नहीं, Amen. वरना दास से भी उत्तम, अर्थात भाई के समान, Amen. जो मेरा तो विशेष प्रिय है ही, पर अब शरीर में प्रभु से भी तेरा भी विशेष प्रिय हो। Not as a slave any longer, और अब वो दास नहीं रहा, but more than a slave, अब वो दास से भी उत्तम हो गया, a brother, अब भाई हो गया, especially dear to me. और वो विशेष रीति से मुझे प्रिय है। How much more to you? और तेरे लिए ये और अधिक कितना प्रिय होगा। Hallelujah. Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, we have had known the Lord in the past in our lives. और पहले हमने प्रभु को जाना है अपने जीवन में, But saints, when we come into the most holy place, लेकिन प्रियो जब हम परम पवित्र स्थान में आते हैं, no more going to be servants unto him, but we are going to be a brother, a son unto the Father. और जब हम परम पवित्र स्थान में आएंगे, वहां पर हम दास के रूप में नहीं, बल्कि एक पुत्र के रूप में, उसके भाई के रूप में होंगे। Now, not as a servant. और अब दास के रूप में नहीं। Amen. Amen. Hallelujah.
It blessed my heart. और इन वचनों ने मुझे बहुत आशीष दी और मेरे हृदय को प्रेरित करा Liberated my spirit. और मेरी आत्मा को उसने छुटकारा दिया। And my prayer is that this may happen to you as well. और मेरी प्रार्थना आप सबके लिए भी है, ये अनुभव हो। Now when you return back from this house, और this camp meeting, और आप जब इस शिव सभा से लौटेंगे अपने घर, not only is he returning home, और ना केवल आप अपने घरों में लौटेंगे, but his status has changed. लेकिन आपका पद और अवस्था भी बदल गई। Amen. Can you accept that? क्या आप इस चीज को विश्वास के साथ स्वीकार कर सकते I हैं? will go back the way I came. You may, but that is not God's disposition about it. आप कह सकते हैं नहीं, मैं जैसे आया था वैसे जाऊंगा, लेकिन याद रखें परमेश्वर की ऐसी इच्छा नहीं है। Now that you will return back from here, लेकिन अब जब आप यहाँ से वापस लौटेंगे, I want to tell you, it is God's economy that you may be changed, your status may be changed, your attitude may be changed. Now you are a brother, you are a son. और मैं आपको कहूंगा परमेश्वर की अर्थव्यवस्था में अब आप एक पुत्र के रूप में लौटेंगे। आपका व्यक्तित्व, आपका पूरा आपका अस्तित्व बदल जाएगा। Now, not now as a servant, और अब आप दास की भांति नहीं रहेंगे, but now as servant. लेकिन दास से उत्तम हो जाएंगे। Tell us, saints of God. और मैं आपको कहना चाहूंगा, And tonight I'm going to share a very short message. और आज रात को एक छोटा सा संदेश बांटेंगे, Going to conclude here tonight. और आज रात को यहाँ पर समाप्त And करेंगे। let me say this to all of us. और जब मैं आप सबको ये कहता हूँ, That now, not as a servant, और अब दास की तरह नहीं, but above as servant. बल्कि दास से भी उत्तम, In the most holy place, प्रियो परम पवित्र स्थान में we do not meet with him anymore as a servant. हम उस स्थान में एक दास के रूप में उससे भेंट नहीं The करते। most holy place is a realm of sonship. Don't forget that. और याद रखें कि परम पवित्र स्थान एक पुत्रत्व का स्थान है। Behind the veil, you cannot behave and act like a servant in it. और पर्दे के पीछे आप दास की भांति कार्य नहीं कर सकते। Amen. Hallelujah. God has changed your status. और परमेश्वर ने आपके अस्तित्व को, आपकी अवस्था को बदल दिया है। Hallelujah. And how that status was changed? और किस प्रकार से आपका अस्तित्व या पहचान बदल गई? In the life of Onesimus, उसी प्रकार से जैसे उनेसिमस के जीवन में हुआ। it was the ministry of Paul. और ये संत पौलुस की सेवकाई के In your life and my life is the ministry of Jesus Christ. हालेलुया। और मेरे और आपके हालेलुया। जीवन में भी ये प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के कार्य के द्वारा होगा। Amen. Oh, may we reconcile to the fact that our status is changed now, not as a servant, but as a brother, as a son. और इस सच्चाई के साथ हम सहमत हो जाए कि अब हमारी पहचान या अस्तित्व दास की तरह नहीं होगा, बल्कि एक भाई, एक You know, पुत्र की many तरह। a time I feel sad for some of my brothers and sisters, कई बार मैं अपने कई भाई और बहनों के लिए उदास हो, where they suffer. जहां पर वो दुख उठाते They हैं, are not the sufferings of Christ, और वो मसीह के दुख उठाना नहीं, but their sufferings are the sufferings of rejecting God's mind in their lives. और वो दुख इसलिए उठाते हैं कि अपने जीवन में वो परमेश्वर की मनसा का तिरस्कार करते हैं। Not willing to accept God's mind and submit to God's mind. परमेश्वर की मनसा को समझ नहीं पाते, स्वीकार नहीं कर पाते, उसमें चल नहीं पाते, And they suffer in that realm. और परिणाम स्वरूप उस वातावरण में वो दुख उठाते हैं। It's not able to help them because they have put God outside of it, or because they rejected God's mind concerning their lives. और परमेश्वर भी उस अवस्था में उनकी मदद नहीं कर पाता, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को उस सीमा से, स्थान से बाहर कर दिया है। Saints, God wants us to be profitable sons
in His house. प्रियो, परमेश्वर चाहता है उसके भवन में हम उसके लिए बड़े काम के लाभदायक हो And पुत्र। let's be available to the Lord in these days. और इन दिनों में हम परमेश्वर के सम्मुख उपलब्ध रहें। You know, and it says here very clearly, verse 16, before I close, और 16वें वचन में स्पष्ट रीति से लिखा है, not now as a servant, but above a servant, a brother beloved, specially to me, but how much more unto thee, both in the flesh and in the Lord. परंतु अब दास की तरह नहीं, वरना दास से भी उत्तम, अर्थात भाई के समान, जो मेरा तो विशेष प्रिय है ही, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा तो विशेष प्रिय हो। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, accept God's word into your life. परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में स्वीकार कर लो। It is His ministry that will bring about this change. और ये उसकी सेवकाई है जो हमारे जीवनों में परिवर्तन लेके It आएगी। is going to be His word that is going to bring about this change. और ये परमेश्वर का वचन है जो हमारे जीवनों में इस परिवर्तन को लेके आएगा। Let's be available to the Lord. और हम उसके लिए परमेश्वर के सम्मुख उपलब्ध It रहे। is well past 10 o'clock. I don't want to hold you any longer. But I will say to all of us, लेकिन मैं आप सबसे कहूंगा, we who are the runaways, और हम जो कि एक समय में भागे हुए थे, the Lord has met with us. लेकिन प्रभु ने हमसे भेंट करी He is sending us back to the house. और वो अब हमें पिता के घर में वापस भेज रहा है। Sending us to the Father and the Father's house. और वो हमें पिता और पिता के घर में भेज रहा है। We who are unprofitable shall be profitable unto Him now. और हम जो कि लाभ रहित थे, बेकार थे, अब बड़े काम के लाभदायक होंगे उसके लिए। अब As a servant anymore, और अब जब हम लौटेंगे घर को वापस, दास की तरह नहीं, but as a brother. लेकिन एक भाई की तरह, एक पुत्र की तरह, He might be the firstborn among many. ताकि कई भाइयों के अंदर से वो पहलौठा या बड़ा भाई ठहरे। One son was given to the earth एक पुत्र को पृथ्वी पर दिया गया to bring many sons unto glory. ताकि कई पुत्रों को महिमा में लाया जा God सके। has an appointment with His sons. प्रियो, परमेश्वर के पास अपने पुत्रों से मिलने का न्यू समय, Is our relationship with the Father is as a son. और हमारा पिता के साथ संबंध उसके पुत्र की तरह है। May we realize this. इस चीज का हमें एहसास हो जाए। May our attitudes and mentalities be changed. होने दे कि हमारे रवैये, स्वभाव, चाल चलन और प्रवृत्ति बदल जाए। And it's my prayer when we return from this. और ये मेरी प्रार्थना है, जब आप इन शिव स्वभाव से वापस लौटेंगे, We will be a people changed from our status. और We are now sons. और हम वो लोग बने जो अपनी अवस्था या हम हमारे व्यक्तित्व में उसमें एक रूपांतर आ जाए, बदलाव आ जाए। To see this by the eye of the Spirit. और पवित्र आत्मा की नजर से इस व्यक्तित्व के परिवर्तन को हम देख सके And we all stand up in the presence of God. और हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हों। Thank you, Jesus. God willing, we'll see more from this book of Philemon. और परमेश्वर ने चाहा तो इस फिलेमोन की पुस्तक से हम मनन में और अधिक देखेंगे। But let's be open to the Holy Spirit. लेकिन पवित्र आत्मा के लिए हम आज Are उपलब्ध you हैं। glad in your heart? क्या आप अपने मन में खुश हैं? Are you happy in your spirit? क्या अपनी आत्मा में खुश हैं? Amen. Let's bring our expressions to God. और अपने अभिव्यक्तियों को परमेश्वर के सम्मुख लाएं। I would request the brother sister to come forward and close tonight.